फिर एक बार जिनकी असीम अनुकंपा was established in USA many years ago under the guidance of Gurudev Akhilji Maharaj. And since then we have organized innumerable Bhagavad Kathas, Ram Kathas, Srimad Bhagavad Gita pravachans over the last 13 years all over the world. Gurudev has been visiting USA and Canada every year for last 13 years, and we devotees have no words for this great Krupa Prasad Lord has endowed on us. We do realize that it cannot be achieved just with our human efforts. Gurudev's blessings and Lord's blessings have given us this great opportunity. And Gurudev's Katha makes us feel the God within us by purifying our mind, by washing the dust of innumerable thoughts that cross our mind every single minute. In addition to organizing all these kathas, Akhil Bhakti Yoga Foundation also organizes medical camps, conducts educational and cultural activities all over the world. And other activities of our organization include providing food, clothing, education, and also other necessities to the needy, such as in Chhattisgarh, as you have seen, the Karma people, the group of dancers that came here, we have been inviting them, and it's not only for their performance, but also to provide them a chance to get out of their small area, and also to listen to Bhagavad Katha and visit various temples. They are very obliged, and every time we give them food and shelter, obviously, and also clothing and some monetary help as well. We have also conducted some Vastradan and some medical and educational activities in the Chhattisgarh area. Here at Ashram also we have some disciples, Vidyarthi, who are given the knowledge of religion, Hindu religion, as well as various scriptures. And they stay here. Our Guru Mataji is very kind to take care of them. And we will like to expand this to many more. We have these students, and naturally they will be the ones who will be giving us the religious and scriptural knowledge in future. With this, Akhil Bhakti Yoga Foundation has taken up a new project, which is Bhakti Yoga Seva Dham. And the construction of Bhakti Yoga Seva Dham, which is, the land is walking distance from here and in a very good neighborhood, a beautiful area called Chaitanya Vihar. Bhumi Pujan is planned on Monday, November 7th, around 11 a.m. We'll confirm the time again. And we will be constructing underground parking lot and one hall and many rooms for all the devotees who come here and who always want to stay at the ashram, and we plan to parallel it or maybe even better than this ashram, so that way we all can come next time and have our accommodations in these areas. And there will be a hall, Bhagavad Sadan, where we will be conducting all the religious, spiritual activities, as well as some charity work like marriages of the poor families, and even we might conduct some educational activities there. With this, we have, if I would request you to all donate generously for this project, so we can finish it as soon as possible and have another katha organized there. And I have some more sponsorships available. मुख्य यजमान है 1 लाख या $2,500, संकल्पबद्ध विशिष्ट यजमान 51,000 और $1,000, संकल्पबद्ध विशेष यजमान 21,000 या $501, और संकल्पबद्ध सम्मानित यजमान 11,000 रुपए या $251, और 5,001 रुपीज़ की स्पॉन्सरशिप है फॉर डेली प्रसाद, विच इज़ $121 और $101,
आप अपनी श्रद्धा से जो भी चाहे वो भागवत जी के प्रसाद के लिए या किसी भी कार्य के लिए चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ ब्राह्मण भोज के लिए 51,000 और $1,000। In the upcoming days, we will have Krishna Janma, Chappan Bhog, Rukmini Vivaha, and sponsorships for these events. For sponsoring these events, please contact our organizers, Mr. Rajendra Agrawal, Sanjay Agrawal, and Babulal Ji Agrawal. We have many sponsors so far, and I will like to announce a few. Our beloved Rajendra Goyal Ji and Geeta Goyal Ji from Delhi. They have done a wonderful job of providing excellent bhojan prasad for all of us, delicious food, and the expense of this, he is not worried about it at all, and जिस भाव से इन्होंने ये किया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, and the expenses would be more than 5 lakhs. मिस्टर JP सेठी जी और माता जी सुशीला सेठी जी, रेणु सेठी जी, आपने 5 लाख का डोनेशन दिया है. I thank you very much. Sethi family has always supported us since the beginning, and all of them are very devoted. JP Sethi ji conducts an annual retreat, which is another event, has been going on for last 11 years in California, at various places in California. Those who will like to join us, please give your email to us, and we will be sending all the information. आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस भी दे हमें, तो हम आपको उसका निमंत्रण जरूर भेज सकते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सीरीन प्लेस है, और गुरुदेव के सानिध्य में वहाँ जब कथा होती है मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो जैसे गुरुजी ने कहा कि यहाँ भी पहले होती थी, तो हम 24 घंटा बस भागवत कथा, भजन, संकीर्तन में डूबे रहते हैं. वहाँ 7 दिन का बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है, तो आप सबको निमंत्रण है उसके लिए. और सोमनाथ और दर्शना बुद्धराज जी ने 2.5 लाख दिए हैं, $5,000. आप हैं जैक्सन मिसिसिपी से, आप यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप शायद हमें आस्था चैनल पे देख रहे हैं, तो फिर से एक बार आपका धन्यवाद, और जोरदार ताली हो जाए आप सबके लिए. फिर है श्यामा आहूजा जी, संतोष आहूजा और स्नेह मुंगा. आपने भी आप पोर्टरविल कैलिफोर्निया से हैं, और आपने दिए हैं 1.25 लाख यानी $2,500. और आपका हमेशा हमें सहयोग मिलता है. आप बहुत डेडिकेटेड है गुरु जी की तरफ और भागवत कथा और सत्संग की तरफ. और सुरिंदर और राजकिशोर जी, आपने दिए हैं $1,02,250. थैंक यू वेरी मच. आप भी काफ़ी आयोजन करते रहते हैं अपने सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में, और बहुत सुंदरता से गुरु जी का स्वागत, सेवा सब में रत रहते हैं. फूलन देवी सेठी जी, आपने दिए हैं $1,200, 61,000 रुपीज़. थैंक यू वेरी मच. आप तो हमारी माता जी है, और गुरुदेव जी की जो सेवा करते हैं उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है. आप है जैक्सन मिसिसिपी से. और डेजी बजाज जी, आपकी ही बेटी है, और आपने दिए $1,100, 1155,000 रुपीज़. थैंक्स डेजी, यू आर नॉट हियर बट वी ऑल मिस यू. और राजेंद्र और गीता अग्रवाल जी, जो कि झांसी से हैं, आपका भी सिर्फ पैसों से तो नहीं, पर और कई रीत्या आपका सहयोग मिलता है, और आपने दिए है 1 लाख रुपए. मोहन और आशा जौहरी जी, 51,000 रुपीज़, $1,000 इक्वल टू $1,000. डॉक्टर सेठी, जैक्सन मिसिसिपी, आपने प्लेज किए हैं $5,000 विच इज़ 2.5 लाख रुपीज़. और सुशीला और हरीश बोहरा जी, आपने दिए है 51,000. आपका भी गुरुजी को, हम अखिल भक्ति योग फाउंडेशन को, हमें सबको बहुत प्रेम मिलता है, बहुत सेवा मिलती है. शिकागो में सब आयोजन जो होता है, आपके सहकार्य के बिना हम नहीं कर पाएंगे. तो आप सबको एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं. बाकी सब नाम मैं कल भी अनाउंस करूँगी. इसी के साथ मैं आप सबको निवेदन करती हूँ कि आप सब जितना हो सके आपके भाव अनुसार और आपके यथाशक्ति आप इसमें हमें सहकार्य दें. एंड योर सपोर्ट इज़ इनवैल्यूएबल. वॉट एवर यू गिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. जय श्री राधे. मेवा समेवा
तदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयो व्यतिरेका यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भगवती दुर्गा माता की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी भाव से श्री भगवान का ध्यान करते हुए उनको ही पुकारे और उनके ही चरणों के आश्रय में उनकी ही कथा का, उनकी ही लीलाओं का आस्वादन करें। सभी लोग भाव से बोलें, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। नट नागर छैल नवल रसिया, 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 प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, करे कालिंदी, करे कालिंदी फूल किलोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो।
के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा सभी लोग भाव से थाली सेवा करते हैं। दोनों हाथ उठा के हरि बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ब्रज नाचे उसकी किलकन पे। 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 गजरीली तिरछी चितवन पे। गजरीली तिरछी चितवन पे। दास बिके हैं बिन मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण राधा रमण
कल के ही कथा प्रसंग को आगे की ओर बढ़ाते हुए महर्षि वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए हताशा और निराशा के क्षणों में ब्रह्मर्षि नारद से ही प्रेरणा प्राप्त कर श्री भगवान के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। लेकिन श्री भगवान के बारे में कुछ कहना लिखना इतना आसान नहीं। कई बार जो लोग भागवत जी का स्वाध्याय करते हैं, कभी पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे ये संभव नहीं है। ऐसे लगता है जैसे एग्जेजरेशन है। कई बार लगता है बड़ा कल्पित लगता है। जब ये कहता है कि भगवान इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, तो लगता है इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। कई बार ऐसा पढ़ने को मिलता है कि क्योंकि कुछ सवाल मेरे भी मन में उठते हैं और तब उन सवालों का जवाब हम कहीं ढूंढते हैं कि भगवान प्रकट हुए, थोड़ी देर में आकाश मंडल को छूने लगे, तो लगता है ऐसा संभव है क्या। और तब कहीं न कहीं जरूर हमारे मन के कोने में ऐसा आता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। जबकि बात ये कही गई कि श्री भगवान कितने बड़े हैं, हम श्री भगवान के बारे में जो भी कहेंगे और जितने भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे। कई बार कोई चीज इतनी बड़ी है कि उसे समझा पाना बड़ा मुश्किल है। पढ़ते तो हमें, लेकिन समझना कठिन होता है। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, अब नाम तो इस मंच से किसी का नहीं लिया जाता, कि किसी देश का हेड प्रमुख $3.5 अरब अमेरिका की बैंक में जमा है। अब हम आपको कितना भी समझाना चाहें या समझना चाहें कि $3.5 अरब कितना होता है, तो बड़ा कठिन हो जाएगा। कैसे समझाएं, कैसे बताएं। आप एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी बात। कितना होता है इतना पैसा, वो समझना बड़ा मुश्किल है। एक बार मुझे ध्यान है कि कोई व्यापारी, अब बूढ़े हो गए, बच्चों ने कहा पिताजी आप बैठो। अब आपको पता है यहाँ गद्दी होती है, उसमें अपने व्यापारी पुराने बैठे हुए हैं, कभी कभी चले जाते। अब धीरे धीरे काम को बच्चों ने टेक ओवर कर लिया, संभाल लिया। अब सारा सिस्टम ऑनलाइन बैंकिंग से हो गया। अब वो जो तिजोरी है ना, पहले तिजोरी से बनाते थे ना, हर दुकान में से तिजोरी लगती थी, उसे स्वस्तिक का चिन्ह बना है, शुभ और लाभ लिखा हुआ है। वो शुभ और लाभ वाली तिजोरी खाली रहने लगी। अब ज्यादा से ज्यादा उसमें दीपावली पर पूजन किए हुए सिक्के डाल दें गणेश लक्ष्मी को, उतने भर के लिए तिजोरी वो खाली। तो वो जो बूढ़े उनके पिताजी हैं, वो जब गद्दी में जाते तो समझ नहीं आता कि भाई पहले तो मैं इतना इतना रुपया लेकर के निकालता था, देता था, लेता था, और मुनीम जी पीछे हिसाब करते थे, वो मामला कहाँ गया। काम तो बहुत बढ़ गया। तो बच्चों से उन्होंने पूछा, भाई तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो, मुझे भी तो बताओ। सारी जिंदगी हमने व्यापार किया, लेन देन किया, इतनी तिजोरी सदा भरी रहती थी, और अभी जब से तुम लोगों ने काम संभाला तिजोरी खाली रहती, इसमें कुछ है ही नहीं। बच्चों ने कहा पिताजी अब समय बदल गया है, अब तिजोरी का समय नहीं है, अब तो कोड नंबर का समय है।